Dear all, in this lecture, we will study the functions and recursions. So, before starting the lecture, we will discuss the previous lecture question. In the previous lecture, we have asked you about which function will you choose to join two words. If we want to join two words, two strings, then which function we will be using. So, there are options where strcpy, strcat, cat, strncon, memcon. Then, so I think we have discussed that strcat is the function, string concatenation is the function which is used to join two words. So B option should be the correct answer. Now, if we talk about this lecture, in this lecture we are starting from the function. So function, what is the meaning of the function? Function is a set of statements. What are the set of statements that when called perform some specific task? So we can say that function is a separate program which perform a specific task. We can take one example, function to add two numbers. So we can have a separate program for the addition of the two numbers. We can call that program in the main program whenever needed. Then we can have another example, function to find the largest of n numbers. So we can make one function for finding the largest number from the n numbers. So it is a basic building block of C program. It provides the modularity. Modularity means we can divide the big program into smaller programs. Means we can make separate program for addition, separate program for finding largest number, and we can call these programs whenever needed. For example, if we want to make one calculator, then in calculator we are having different functions. So if will make one program for complete functions of the calculator, then it will become a very large program. So for that we can divide separate small it big program into small programs. Like we can make the separate program for addition, we can make separate program for subtraction, we can make separate program for multiplication, we can make separate program for division, and we can combine that. So like this we can have one calculator which is having four functions like addition, subtraction, multiplication, and division. So likewise these functions are very much useful in providing the modularity. Same thing, it is having the advantage of code reusability. We can reuse that code at any other place also. For example, if we have made one function for addition, then we can use that in the calculator program. We can use that during the multiplication. So likewise, the function provides the modularity and code reusability. Now, if we talk about the syntax of the function, so we are having what syntax of the function is that we will be writing the return type. Return type means what type of data will be returned from the function. Then we will be writing the name of the function. Then we will be providing the inputs, that is parameter 1, parameter 2, or any other parameters. So like this is the syntax of the functions in the C. That is, we are having the return type, we will have the name of the function. For example, any function is for the addition, so we can have the name sum. Then we will be writing the inputs for the addition, that is parameter type. So first input, that is a, then before that we will be writing the data type of that input. Same thing, second input is parameter is b, then we will be writing the data type of the parameter. So syntax of the फंक्शन इज देयर. फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होता है, दैट इज सबसे पहले उसका हमको डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद उसका नेम लिखना है, उसके बाद उसमें जो भी इनपुट्स लग रहे हैं वी विल बी राइटिंग इनसाइड द पेरेंथेसिस. तो पेरेंथेसिस के अंदर हमको उसमें इनपुट्स लिखना है. सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन.
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल जैसे हो सकता है, जैसे मैंने मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें 2 नंबर्स आपने लिए, num1 मे बी 6 एंड num2 मीन्स नंबर 2 मे बी 7। अब मैं इसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सेपरेट प्रोग्राम बना लिया, मीन्स दैट इज नॉन एज अ फंक्शन प्रोग्राम। इस फंक्शन प्रोग्राम का काम ये है कि आप कोई भी नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें से बड़ी नंबर कौन सी है ये फाइंड आउट करके आपको देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंट, मतलब इसमें से जो आंसर आएगा वो मेरा एक नंबर होगा, दैट इज द, तो वी आर राइटिंग हियर द इंट। आई हैव, उसमें उसका नाम दे दिया हमने मैक्स। मैं उसमें से दोनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैक्स एक नाम उसको दे दिया फंक्शन को। यहाँ पे 2 इनपुट हैं, एक इनपुट क्या है num1 है, दूसरा इनपुट क्या है num2 है। तो हमने यहाँ पे दोनों इनपुट्स लिख दिए और दोनों इनपुट्स के हमने डेटा टाइप लिख दिए। एक वेरिएबल ले लिया हमने रिजल्ट, सो आई एम राइटिंग हियर द int रिजल्ट। अब मुझे क्या करना है, दोनों नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगाया, इफ num1 ग्रेटर देन num2। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नंबर 1। सो रिजल्ट विल बी num1। एल्स, एल्स में क्या होगा, नंबर 1 बड़ा नहीं है तो हम क्या आंसर दे देंगे, नंबर 2 इज ग्रेटर, एंड वी विल रिटर्न द रिजल्ट। सो वाट एवर द रिजल्ट इज देयर, नंबर 1 और नंबर 2, उस आंसर को हम मेन प्रोग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द makes function, that is finding the maximum of 2 numbers. Same thing, how the function works. So what is the concept of the function, that is, for example, we can call any function in the main program, I have told you. Then for example, if we are writing the function for the sum, so function में लिखने के लिए हमने function का कैसे बनाया, return type, then name of the function यहाँ पे क्या है, sum, then we are providing the parameters, then I have made this function for the addition, so I will be returning, मैं यहाँ पे क्या आंसर रिटर्न करूँगा, a प्लस बी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे जब हमको एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने क्या किया, यहाँ पे int मेन लिखा, दैट इज वी आर राइटिंग द मेन प्रोग्राम। अब मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, तो मेन प्रोग्राम में एडिशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे जब हमको एडिशन की ज़रूरत होगी। सो हाउ आई विल बी कॉलिंग, आई विल बी कॉलिंग बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के नाम से उसको बुलाया जाएगा। तो फंक्शन का नाम क्या है, सम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एड सम 10 30, मीन्स हम फंक्शन को बुला रहे हैं, सम फंक्शन को, उसके इनपुट्स हैं क्या, 10 और 30। सो इसका आंसर यहाँ पे रिटर्न होगा a प्लस बी, मीन्स 10 प्लस 30 आंसर रिटर्न होगा। और ये आंसर हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज आई एम राइटिंग, इसमें लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है कि सम इज इक्वल टू, प्रिंट एफ के इनसाइड हमने लिखा हुआ है, प्रिंट एफ के इनसाइड हमने लिखा हुआ सम इज परसेंट ई एड। सो ये एड का जो आंसर हमारे पास यहाँ से रिटर्न हुआ, दैट विल बी डिस्प्ले, मीन्स आंसर 40 विल बी डिस्प्ले। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पे एक फंक्शन प्रोग्राम बनाया। फंक्शन प्रोग्राम बनाने के बाद हम इसको मेन प्रोग्राम में इस फंक्शन प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं। तो दिस इज द वर्किंग कंसेप्ट ऑफ एनी फंक्शन, कि फंक्शन प्रोग्राम को हम बनाने के बाद मेन प्रोग्राम में कॉल किस हिसाब से कर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, दैट इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो 2 प्रकार की फंक्शंस होती हैं, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शंस, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, इज रेफर टू एज बिल्ट इन फंक्शन, जो फंक्शंस ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में डिफाइन की गई हैं, दैट दे आर बिल्ट इन फंक्शन, दैट आर नॉन एज द लाइब्रेरी फंक्शंस। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, दैट इज पी ओ डब्ल्यू, अगर मुझे किसी का पावर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल 2 पावर 3, देन वी आर हैविंग वन फंक्शन इन द सी, दैट इज पी ओ डब्ल्यू। इफ आई वांट, अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, देन आई हैव, इसमें एक फंक्शन होता है SQRT,
मुझे स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना है, उसके लिए फंक्शन होता है strcmp। मुझे स्ट्रिंग को कॉपी करना है, उसके लिए फंक्शन होता है strcpy। तो ये फंक्शन हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सी की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। एक फंक्शन का टाइप होता है जो हम एक सेपरेट हम फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं, एक यूजर फंक्शन को डिजाइन कर सकता है। ऐसे टाइप को फंक्शंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शंस दैट द प्रोग्रामर क्रिएट आर नोन एज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो फंक्शन प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट की जाए उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी जो हमने एग्जांपल लिए वो कौन से टाइप के फंक्शंस थे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे। जैसे हमने एक सम फंक्शन बनाया, मैक्स फंक्शन बनाया, हम डिफरेंस फंक्शन बना सकते हैं, हम प्रोडक्ट के लिए फंक्शन बना सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल कौन से हो गए, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दैट इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नाउ if we talk about the example of the library function, what can be the example of library function? That is, we want to find the square root of any number. Square root sqrt function is available in the C, but for that we have to include one library, that is math.h. Then we are writing hash include stdio.h int main. We are taking the decimal number, so we are हमने यहाँ पे डबल नंबर लिया हुआ है। इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू SQRT फंक्शन लगाया जो ऑलरेडी सी में अवेलेबल है। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन एंड वी आर राइटिंग नंबर इन पेरेंथेसिस सेमीकोलन। नाउ वी कैन डिस्प्ले द आंसर। इसका आंसर डिस्प्ले कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज दिस वन, सो इसका स्क्वायर रूट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, 64 लिया, डबल है तो 0.00 लगा रहे हैं यहाँ पे, उसका स्क्वायर रूट आंसर क्या आ जाएगा, 8। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वन एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का वैसे एग्जांपल हमने देख लिया है। वहाँ पे हमने क्या लिया था, एक सम फंक्शन बनाया था, उसका आंसर क्या रिटर्न होता था, a+b। ठीक है, मेन प्रोग्राम में हम a की वैल्यू 30 ले रहे हैं, b की वैल्यू 40 ले रहे हैं, तो हमारे पास हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, उसका नाम क्या है, सम। सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और a+b यहाँ पे इनपुट दे देंगे। हमारे इनपुट क्या है, 30 और 40 इनपुट है, तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज 70। तो इस हिसाब का फंक्शन जो हमने देखा वो हमने खुद ने यूजर नहीं बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड के टाइप्स अगर देखें तो मेजर टाइप्स इसमें होते हैं। फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न। फंक्शन, आर्गूमेंट को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि आर्गूमेंट में, यहाँ पे आर्गूमेंट को नॉर्मल भाषा में हम ऐसे समझें, नो इनपुट। रिटर्न मतलब इसको रिटर्न टाइप को नॉर्मल भाषा में अपन आउटपुट समझते हैं। तो 4 कंडीशन बन सकती है। क्या हो सकता है कि इनपुट 0 हो, आउटपुट 0, मतलब फंक्शन ना आप मेन प्रोग्राम से इनपुट ले रही है, ना उसको आउटपुट दे रही है। तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन, उस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। दूसरा क्या हो सकता है, फंक्शन के पास इनपुट नहीं है और फंक्शन एक आंसर प्रोवाइड कर रही है मेन प्रोग्राम को, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। एक और टाइप क्या हो सकता है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट। फंक्शन एक इनपुट ले रही है डेट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम एंड इट इज नॉट रिटर्निंग, ये आंसर उसको कोई रिटर्न नहीं कर रही है, नो रिटर्न टाइप। एक और वेराइटी क्या हो सकती है, फंक्शन इज टेकिंग द इनपुट एंड फंक्शन इज आल्सो रिटर्निंग सब आंसर, सो this is known as the function with arguments and return type. So there are 4 types of user defined function: function with no argument and no return type, function with no argument with return type, function with argument no return type, function with argument and with return type. Then this is all about the function. Now we are having topic, that is recursion. The recursion is also the function. What is the definition of the recursion? Recursion is a programming technique where function calls
itself. So I have told you recursion is also the function. If any function is calling for the same function, that is known as, उसको क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं. And कब तक कॉल करेगी, until the some specific condition is base condition is met. तो जब तक वो कंडीशन मेट नहीं हो जाती तब तक वो फंक्शन क्या होगा, तब तक वो फंक्शन कॉल करती रहेगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग. सो वी आर हैविंग वन that is we have made one function rec. Now this rec will be called by the same program same until the n is equal to 6. now if we now now इसमें अगर बात करें, ये REC जो फंक्शन बना है, ये REC फंक्शन के अंदर फिर से कॉल होगा. तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक रिकर्सन का नाम दे दिया गया. नाउ वी आर राइटिंग वन मेन प्रोग्राम. मेन प्रोग्राम में int main आई हैव रिटन REC1 मीन्स आई हैव n की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया. अब हमने क्या किया, ये फंक्शन को कॉल किया, REC1 आ गया यहाँ पे. तो ये फंक्शन कब तक कॉल होगा, REC विल बी कॉल्ड बाय द सेम फंक्शन अंटिल n कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. अगली बार 2 बनेगा तब ये कॉल होगा. नेक्स्ट टाइम 3 पे कॉल होगा, 4 पे कॉल होगा सेम फंक्शन, 5 पे कॉल करेंगे. अब 6 होगा तो ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा. तो दिस इज द मीनिंग दैट इफ सेम फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, दैट इज नोन एज द रिकर्सन. तो रिकर्सन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, अगर हमको क्या करना है, एक फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. फैक्टोरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का मीनिंग होता है जैसे आपको फैक्टोरियल 6 फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये जो भी आंसर है दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ द 6. ये काय का फैक्टोरियल हो गया 6 का. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिकर्सन का यूज कर सकते हैं. कैसे रिकर्सन का यूज कर सकते हैं, दैट इज we can use the recursion for finding the factorial. तो इसमें फैक्टोरियल का रिकर्सन का कैसे यूज किया जा सकता है देखते हैं. हमको क्या करना था, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना था. तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया. कौन सा फंक्शन बनाया, फैक्ट के नाम से. बिफोर दैट आई एम राइटिंग द डेटा टाइप लॉन्ग फैक्ट. लॉन्ग फैक्ट मीन्स इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन का बड़ा होने वाला है, इसलिए हमने इंटीजर की जगह के पहले यहाँ पे लॉन्ग इंट लिख दिया. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द factorial function, that is fact. So I can call this function with the name fact. Then तो हमने फैक्ट के नाम से यहाँ कहीं कॉल करने वाले हैं इसको. अब इसको रिकर्सन बोला गया. तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे ये फंक्शन में ही कहीं ना कहीं कॉल हो रहा है. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. n जब तक 1 से या 1 तक रहेगा तब तक हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आई एम रिटर्निंग n इंटू फैक्ट n-1. तो अगर n की वैल्यू 6 ले लिया तो यहाँ पे फैक्ट क्या हो जाएगा, n 6 इंटू फैक्ट 5. अगली बार क्या हो जाएगा, अगर हमने n की वैल्यू 6 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू फैक्ट 5. नेक्स्ट टाइम क्या होना 6 इंटू 5 इंटू फैक्ट 4. ये तब तक अपने आप को कॉल करता रहेगा जब तक आंसर n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती. तो इस हिसाब से हमको नेक्स्ट टाइम आंसर मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4. नेक्स्ट टाइम इंटू 3 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम इंटू 2 हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम इंटू 1 हो जाएगा. ठीक है. तो इस हिसाब से हमने इस फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिकर्सन. तो हमने इसको कॉल करने के लिए मेन प्रोग्राम डिजाइन किया. मेन प्रोग्राम में क्या डिजाइन, किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, वी आर राइटिंग लॉन्ग इंट फैक्ट, दिस फंक्शन का नाम लिखा हुआ. देन वी आर स्टार्टिंग द मेन प्रोग्राम. वी आर आस्किंग द यूजर से हमने एक नंबर पूछा, किस नंबर का मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, स्कैनफ लिख दिया. ठीक है. अब यहाँ पे हमने फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर आंसर, और यहाँ पे n और फैक्ट, n मतलब उसको n प्रोवाइड कर रहे हैं. देन व्हाट वी आर राइटिंग फैक्ट n. तो n इज द नंबर जिसका मुझे फैक्टोरियल डिस्प्ले करना है, किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. आई एम यहाँ पे फैक्ट n लिखा.
कि इसका मुझे फैक्टोरियल डिटरमाइन करके बताओ। तो यहाँ पे आपस में एज ए रिकर्सन बन के रिकर्सन आपस में एक दूसरे उसी फंक्शन को कॉल करते करते जब तक वो डिक्रीमेंट होके नंबर 1 नहीं हो जाता तब तक आपको ये मल्टीप्लाई नंबर्स होते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपके पास आंसर रिटर्न हो जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल का जो भी आंसर आएगा 720। that if we are taking the n is equal to 6 then we will be having the answer 720। सो इस हिसाब से आंसर आपको मिल जाएगा कहेगा फैक्टोरियल का विद द यूज ऑफ द रिकर्सन। सो रिकर्सन इज आल्सो द फंक्शन इफ द फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ दैट इज नोन एज द रिकर्सन, ठीक है। सो this is all about the function and recursion lecture. So now we can assess ourselves by answering one question in the comment box। इस आपने इस लेक्चर में कितना सीखा, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इस लेक्चर को में क्या क्या सीखा। एक क्वेश्चन है दैट इज विच वन इज लाइब्रेरी फंक्शन, इसमें से आपको ये आंसर देना है कि इसमें से लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है। जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शन इसमें है माई एड, स्कैन एफ, कंप्यूट, कैल्क दे। तो इसमें से आपको बताना है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको दी हुई थी शायद, क्या दिया है, लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो फंक्शन सी में ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो you can share this video with your friends and you can hit the like button. Thank you very much.